આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની ઉત્કૃષ્ટ પહેલ. ગુજરાતની સૌપ્રથમ અદ્યતન કેથલેબ તથા હાઇબ્રિડ ઓપરેશન થિયેટર સાથે કાર્ડિયાક સેવાનો પ્રારંભ. અમદાવાદ શહેરના સરખેજ, જુહાપુરા સહિતના પશ્ચિમ વિસ્તારના દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન મોહમ્મદી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે તારીખ 4 ડિસેમ્બર 2022ના રોજથી હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે ખાસ કાર્ડિયાક સેવા, અત્યાધુનિક કેથલેબ તથા હાઇબ્રિડ ઓપરેશન થિયેટરનો પ્રારંભ થયેલ છે. કમા એન્જિયોગ્રાફી, એન્જિયોપ્લાસ્ટી તથા બાયપાસ સર્જરીની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે, જેથી હવે સરખેજ, જુહાપુરા તથા આસપાસના વિસ્તારના હૃદય રોગના દર્દીઓને ક્યાંય અન્ય દૂરની હોસ્પિટલમાં જવું નહીં પડે. આ સંદર્ભે વધુ માહિતી આપતા આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના CEO શ્રીમતી કાયનાત શેખે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સેવાના ધ્યેય સાથે કાર્યરત સંસ્થા એવી મોહમ્મદી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વર્ષ 2014માં સ્થાપેલ આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ હાલમાં 100 બેડની क्षमता ધરાવે છે. रहेंगे बाहर के कंपैरिजन में इसके रेट्स हमेशा कम रहेंगे, बट इसके अंदर खर्चा ज़्यादा किया गया है बिकॉज हम इसको एक कॉर्पोरेट लेवल की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं. इस एरिया में 6 से 7 लाख जैसे बताया पॉपुलेशन है, पर जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है, अटैक आता है, पेशेंट को हमको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता था और वो मिनिमम टाइम होता है जहाँ पर सेकेंड्स भी काउंट करती है. इसलिए ये डिपार्टमेंट हमने एकदम हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी से डेवलप किया है. इनफैक्ट गुजरात की फर्स्ट हाइब्रिड ओटी यहाँ पर डेवलप हुई है. अगर कैथ लैब में अगर पेशेंट को कुछ भी इमरजेंसी बाईपास में लेना पड़ा तो पेशेंट को कहीं और शिफ्ट करना या कोई फ्लोर पे ले जाना नहीं, विद इन सेकेंड्स पेशेंट ओटी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ओटी एग्जैक्ट उसके बाजू में ही है और इसके रेट्स चैरिटेबल रेट्स के हिसाब से ही रहेंगे. जी, हमारा आयुष्मान कार्ड का सबमिशन हो गया है. ऑडिट्स आकर हमारे को एम्पनलमेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. માત્ર 8 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં અનુભવી નિષ્ણાંત તબીબો દ્વારા દર્દીઓને આરોગ્ય મદદ સેવાઓ પૂરી પાડી સારી એવી લોકચાહના મેળવી છે. રાહત દરે સુવિધા પૂરી પાડતી આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં 40થી વધુ નામાંકિત તબીબોની ટીમ પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે તથા 24 કલાક સતત કાર્યરત રહેતી આ હોસ્પિટલમાં 8 બેડની ક્ષમતા ધરાવતું ઇમરજન્સી કેર યુનિટ, ICCU, PICU, NICU, મનેશન થર્મોમીટર તથા દર્દીઓને રહેવા માટે ઉત્કૃષ્ટ સુવિધા ધરાવતા સ્પેવર રૂમ, ડીઝલ રૂમ, સૂટ રૂમ, જનરલ વોર્ડ, ગાયનેક વોર્ડ, સેમી સ્પેશિયલ રૂમ ઉપલબ્ધ છે. આધુનિક સુવિધા ધરાવતા ઓપરેશન થિયેટરમાં આધુનિક ટેકનોલોજી ધરાવતા સાધનોની મદદ વડે હેઇન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ, લેપ્રોસ્કોપી, સર્જરી તથા અન્ય તમામ પ્રકારના ઓપરેશન ખૂબ જ નજીવા દરે કરવામાં આવે છે. હાલમાં હોસ્પિટલમાં અદ્યતન સીટી સ્કેન, એક્સરે, સોનોગ્રાફી, મેમોગ્રાફી, કલર ડોપલર તથા લેબોરેટરીની સુવિધા ખૂબ જ નજીવા દરે પૂરી પાડવામાં આવે છે. ઉપરાંત ખાસ કિડનીના દર્દીઓ માટે નજીવા દરે ડાયાલિસિસની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. મોહમ્મદી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આ હોસ્પિટલના માધ્યમથી જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબ દર્દીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતી સારવાર ખૂબ જ નજીવા દરે પૂરી પાડવાના ધ્યેય સાથે સતત કાર્યરત છે તથા કોઈપણ દર્દી પૈસાના અભાવે તબીબી સારવારથી વંચિત ન રહે એ પણ સંસ્થાનો મુખ્ય ધ્યેય છે, જેના માટે મોહમ્મદી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી આબિદ હુસેન શેખ, ઉપપ્રમુખ શ્રી ઇસ્માઇલભાઈ દ્વારા અને સેક્રેટરી શ્રી ઇકબાલ હુસેન શેખ સહિતના ટ્રસ્ટીઓ ભારે જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. સંસ્થાનો ધ્યેય દર્દીઓને સારામાં સારી સારવાર અને સુવિધા મળી રહે તે માટે આમેના ખાતુન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલને અત્યાધુનિક સાધનોથી સજ્જ બનાવવાની તમામ સારવાર અને સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આગળના ભવિષ્યમાં અમો આ સંસ્થાકીય એક ગર્લ્સ નર્સિંગ કોલેજ ટૂંક સમયમાં સરકારશ્રીની મંજૂરી સાથે શરૂ કરવા માંગીએ છીએ. આ કાર્ડિયાક સેન્ટરના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે જામિતુલ હિદાયાના ચેરમેન શ્રી મોહમ્મદ ફઝલુર રહીમ મુજદ્દિદી, શ્રી અબ્દુલ સત્તાર મેમન, શ્રી ઇનાનુલ હક ઇરાઈકી, એડવોકેટ શ્રી અબરાર અલી સૈયદ, તાહિર અલી, આદમ અલી એડનવાલા, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર વર્ષયા, ડૉક્ટર પાર્થ ઠક્કર,
ડૉક્ટર અભિમન્યુ કોઠારી સહિતના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस हॉस्पिटल के फाउंडर अहमद भाई अफ़ीन वाला, उन्होंने 2001 में इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन रखा और इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन रखते टाइम भी उन्होंने और उस वक्त भी उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। फिर 2014 के अंदर उन्होंने फिर इसका इनाग्रेशन किया और फिर मुझको याद किया और मैं हाज़िर हुआ। मुझे खुशी है कि आज तकरीबन 400 बेड का हॉस्पिटल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें कार्डियाक डिपार्टमेंट का इसका इनाग्रेशन हुआ है। तो हार्ट की प्रॉब्लम से मुताल्लिक़ जो भी सर्जन है, फिजिशन है, उनके साथ में कंसल्टेशन यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके से साथ ही साथ किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में यहाँ जो इतनी बड़ी बस्ती है, ये सरखेज के इलाके में और आसपास की बस्ती में 6-7 लाख की आबादी है। इस पूरी आबादी के लिए इतना स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो आज इसने एक और स्टेप आगे बढ़ाया और कार्डियाक डिपार्टमेंट का उन्होंने इफ्तिताह किया और इनाग्रेशन किया। मुझे बड़ी खुशी और मसरत है और मैं आबिद भाई से, अज़हर भाई से, दोनों साहबजादगान से, इसी तरीके से इकबाल साहब से, जो कि अहमद भाई अफ़ीन वाला, जो कि फ़ाउंडर थे इस हॉस्पिटल के और वो उनके साथी हैं इकबाल साहब। मैं उनसे यही कहूँगा कि चूँकि 400 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है तो आने वाले वक्त में एक मेडिकल कॉलेज भी बना दिया जाए और उसका ये हॉस्पिटल हो जाए, उससे अटैच हो जाए, तो ये आसानी के साथ में ये काम हो सकता है। और मैं कौम के दर्दमंदों से अपील करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं और मेडिकल कॉलेज भी कायम करने की कोशिश करें और कौम को दामे दरमे कदमे सुखने इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो अच्छा इलाज करा सकें, लेकिन यहाँ बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर और एक चैरिटेबल अंदाज में जो इलाज होता है, जिसमें कोई कमर्शियल चार्जेस नहीं लिए जाते, ये बहुत बड़ी खिदमत है उम्मत की। और इस्लाम ने खिदमत खल्क़ के सिलसिले में बड़ी गाइडलाइन दी है, बहुत रहनुमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, मिस्कीनों, मोहताजों और ख़ास तौर पर बीमार लोगों की मदद करने और उनके साथ ताउन करने की आपने हिदायत फरमाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। हम सबको, पूरी मैनेजमेंट को, हॉस्पिटल से तमाम लोगों को, डॉक्टरों को और इससे वाबस्ता जितने पूरी टीम है, उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि सबके कोऑर्डिनेशन और सबके कंट्रीब्यूशन और सबके कोऑपरेशन से ये हॉस्पिटल आज यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह इसको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम और पोस्ट बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ मेमन है और इस हॉस्पिटल से कोविड के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और ये कार्डियाक जो डिपार्टमेंट अभी बना हुआ है वो इंशाल्लाह मेरी मम्मी के नाम से बना हुआ है। और आगे हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया है कि एक नर्सिंग कॉलेज चालू करना चाहते हैं हम लोग यहीं पर, तो उसके लिए अब आगे से हम काम चालू कर देंगे। और गुजरात गवर्नमेंट के परमिशन के साथ यहाँ पे एटलीस्ट हम 30 सीट नर्सिंग की ले आएंगे और वो फिर सिर्फ गर्ल्स के लिए होगी। तो गर्ल्स को यहाँ पे नर्सिंग की तालीम देंगे और यहीं पर उनको जॉब भी हो जाएगी और बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। वो लेवल की हम करना चाहते हैं। आगे जो भी डिपार्टमेंट में अभी कुछ 1-2 डिपार्टमेंट कुछ बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहते हैं। और हमारे साथ जो डॉक्टरों की टीम जुड़ी हुई है, इस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ हैं, वो सब इतने ही मेहनत से काम ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल के अंदर नर्सिंग का काम और बाकी का जो भी काम बाकी है वो हम ख़त्म कर देंगे। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं मौलाना साहब जयपुर से आए हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त रखी है हमारे सामने कि एक मेडिकल कॉलेज की आप ताउन करिए और उसके लिए हम भी सपोर्ट करेंगे जयपुर से। तो हमने ये भी सोचा है कि अगर टाइम रहा और कुछ जगह अच्छी मिल गई तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज भी चालू करना चाहेंगे। थैंक यू।
ये हॉस्पिटल से जॉब होने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या होगा आगे मैं डॉक्टर सलीम सिद्दीकी, कंसल्टिंग फिजिशियन, MD, सीनियर फिजिशियन, और आई एम प्रैक्टिसिंग इन लास्ट 32 ईयर्स। और आमिना खातून में मेरी जो खिदमत है वो पिछले 8-10 सालों से है। और आमिना खातून हॉस्पिटल एक ऐसे इलाके में बनी है कि जहाँ पर पहले कभी कोई ICU भी नहीं था, और जब पेशेंट को ICU में भेजना होता था तो वो बीच में ट्रैफिक के मसले और इमरजेंसी टाइमिंग वो बहुत मुश्किल होती थी। उस आमिना खातून हॉस्पिटल खुलने के बाद उस किस्म के पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इमरजेंसीज जितनी भी है उसको यहाँ पे जल्द से जल्द ट्रैफिक के टाइम में और दूर दराज इलाकों में जो हॉस्पिटल जहाँ सुपर स्पेशलिटी है वहाँ जाने के बजाय आमिना खातून में इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाती है। ये डिपार्टमेंट से कितना फ़ायदा होगा? ये डिपार्टमेंट किस तरीके का बनाया गया है, क्या फैसिलिटी? ये कार्डियक का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सर्जरी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दोनों इस डिपार्टमेंट में काम होंगे। यानी कि लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्टेंट वगैरह और बाईपास सर्जरीज़ ये दोनों यहाँ पे हो सकेगी। और उसके अलावा वाल्वुलर सर्जरीज़ भी यहाँ हो सकेगी, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र रसैया जो हैं वो सीनियर कार्डियक सर्जन हैं, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के माते तहत ये सारा प्लान किया हुआ है। सर, नाम और तारुफ दीजिए आपका। मेरा नाम अबरार सैयद है। मैं ऐसे पेशे से एडवोकेट हूँ और सर्किट जोड़ा कमेटी का चेयरमैन हूँ। और ख़ास करके ये जो आमिना खातून हॉस्पिटल की नींव से जुड़ा हुआ इन लोगों के साथ, और ख़ास करके जो मैं इनका लाइफ मेंबर भी हूँ, और अहमद हुसैन भाई के साथ जो मेरा रिश्ता था उसके वजह से मैं काफ़ी हर चीज़ से, हर पहलू से जुड़ा हुआ हूँ। खास करके आज के दौर पे आज के इवेंट पे ये बात करना चाहूँगा कि मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत जो ये आमिना खातून हॉस्पिटल 2014 से वजूद में आई, और वजूद में आने के बाद उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और स्पेशली कोरोना के अंदर पूरे इलाके के अंदर लोगों तक मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया है और अच्छी तरह से लोगों की खिदमतें की है। अब इस जो इतनी अच्छी हॉस्पिटल है उसके अंदर एक इजाफा होने जा रहा है, जो कार्डियक डिपार्टमेंट शुरू होने जा रहा है। कार्डियक डिपार्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि कार्डियक के डिसीज़ के अंदर इंसान को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो अपने खुद के लोकेशन में या विद इन द रीच या लोकेलिटी में होना ज़रूरी है। जो इस 4-5 लाख की बस्ती के अंदर ये चीज़ नहीं थी, जो आज से शुरू हो रही है। इसलिए हम आमिना खातून हॉस्पिटल और उसके अराकीन, जो मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अराकीन, उसके डॉक्टर सबका तहे दिल से शुक्रिया पूरे माशरे की तरफ से चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये सर्विस मुहैया की है यहाँ लोगों तक, वो यकीन तारीफ़ काबिल है। और उनका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो, और ये आप देखिए कितने ये इलाके के अंदर गुजरात का फर्स्ट हाइब्रिड कैथलिक डिपार्टमेंट शुरू होने जा रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं हॉस्पिटल को और सबको मुबारकबादी दूंगा। थैंक यू सर। इसमें आपका भी कुछ बजट लगा है? मैं एक्चुअली ये हॉस्पिटल का एक लाइफ मेंबर हूँ। उनके साथ मैं शुरुआत से जो प्लान मंजूर हुए, मैं ओडा का एडवोकेट होने के नाते जो प्लान मंजूर के शुरू से उसकी नींव के साथ जुड़ा हुआ है, और जो भी फाइनेंशियल एड जो हमारे कनेक्शन थे उससे हमने मुहैया की हुई है। गरीब और मिडिल क्लास लोग किस तरह से लाभ ले पाएंगे ये हॉस्पिटल में? ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होती है और जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होती है उसमें एक फ़र्क होता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपने माइंड किया होगा कि लोग काफ़ी कुछ उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसमें कंसेशनल रेट पे पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के नाते यकीनन गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે। આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ। ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે જ એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ। અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે। મળશે દરરોજ ઇનામ જીતવાની તક। અમારા સભ્ય બનો, જોડાઓ અમારી સાથે।